بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرنے والوں کو بتائیں تو ضلع ہنگو میں پاک فوج کے زیر اہتمام یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ سول انتظامیہ کے نمائندگان بشمول کمشنر کوہاٹ بھی موجود تھے۔ کنونشن میں جی او سی میجر جنرل شاہد امیر افسر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ یوتھ کنونشن کا بنیادی مقصد نوجوان میں قومی شعور بیدار کرنا اور انہیں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر یکجا کرنا تھا۔ شرکاء نے تقریب میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور انتظامیہ اور پاک فوج کے ساتھ اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ نوجوانوں نے قومی سلامتی، ترقی اور یکجہتی کے موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت مثالی گاؤں پروگرام کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پروگرام کے دائرہ کار کو 7,500 دیہات تک بڑھانے پر غور کیا گیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ ماڈل ولیج فیز 1 پر 555 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ ہے اور نئے مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 150 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ صوبائی وزیر نے پی آر ایم ایس سی کو ہدایت دی کہ فیز 1 کو 18 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز دیہات کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہیں اور پہلے مرحلے میں ہر صوبائی حلقے کے کم از کم 50 گاؤں شامل کیے جائیں گے۔ مثالی گاؤں پروگرام مریم نواز کا سونا پنجاب پروگرام کا حصہ ہے اور ابتدائی طور پر 485 گاؤں شامل ہیں۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا تفصیلی دورہ کیا اور جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے پر کام ڈبل شفٹوں میں جاری ہے اور مجموعی طور پر 76% کام مکمل ہو چکا ہے۔ کچہری انٹرسیکشن پر 74%، افتخار جنجوا روڈ پر 72% کام مکمل ہو چکا۔ اسی طرح یوٹیلیٹی ڈسکس 86%، پیدل چلنے والوں کے لیے پل 50%، واٹر ویل 46% مکمل کیا جا چکا ہے۔ حکام کے مطابق نومبر 2025 میں شروع ہونے والے منصوبے کی تکمیل کے لیے 18 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی، تاہم اسے ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کے لیے مئی 2026 کی نئی ٹائم لائن دی گئی ہے۔ کمشنر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ تمام کام مقررہ وقت اور معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کو بھی ہدایت کی ہے کہ منصوبے کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے۔ یہاں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، لاہور میں سیف سٹی بلڈ بینک نے بلڈ کیسز میں مبتلا 15 سالہ اذان کے لیے فوری طور پر 2 ڈونرز کے ذریعے خون کا انتظام کیا۔ چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیر علاج بچے کے والد نے ایمرجنسی پر خون کی فوری فراہمی کے لیے درخواست کی تھی۔ ورچوئل بلڈ بینک کے افسر نے فوری طور پر ڈونرز تلاش کیے اور کانفرنس کال کے ذریعے ڈونرز اور متاثرہ فیملی کے درمیان فوری رابطہ کروایا۔ ڈونرز نے ہسپتال بروقت پہنچ کر خون عطیہ کیا، جس سے اذان کی قیمتی جان بچائی جا سکی۔ والد نعمان نے سیف سٹی ٹیم اور ڈونرز کے بروقت تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمان سیف سٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی ہیلپ لائن پر فوری کال کریں۔ میرپور ماتھیلو میں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع گھوٹکی کے صدر اور وائس چیئرمین ضلع کونسل میر بابر علی خان نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی کے موقع پر کہا کہ وہ ایک عظیم نڈر اور تاریخی رہنما تھے جن کے نظریات آج بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ قائد عوام صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک مکمل نظریہ اور مشن کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھٹو نے اپنی صلاحیتوں اور قیادت سے ملک کو بحرانوں سے نکالا اور عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا، جس سے پاکستان ایک مضبوط اور خود مختار ملک بن گیا۔ آج 4 اپریل 2026 کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر پیپلز سیکریٹریٹ میں ضلع گھوٹکی کل خوانی اور خیرات کا اہتمام کیا گیا۔
तकरीब में पीपल्स पार्टी सिंध के सूबाई वजीर और सखर डिवीजन के सदर जाम इकरामुल्लाह धुरेजो, म्यूनसिपल कमेटी घोटकी के चेयरमैन जाम आसिफ रजा खान, पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के ओहदेदारान, वर्कर्स और जियालों ने भरपूर शिरकत की। जाम इकरामुल्लाह धुरेजो ने शहीद भुट्टो की कुर्बानियों और अवामी हुकूक के लिए इनकी जद्दोजहद पर रोशनी डाली और वर्करों और जियालों को इनके नज़रिए के मुताबिक अवाम की खिदमत जारी रखने की हिदायत की। कनकोट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सियासी, समाजी और कौम परस्त जमातों के कारकुनान ने इंडस हाईवे पर धरना देकर कौमी शाहराह मुकम्मल ब्लॉक कर दी। इसी हवाले से देखते हैं कनकोट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नूर हसन सब्जोई की ये रिपोर्ट। कंदकोट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कौम परस्त जमातों के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। कारकुनान ने इंडस हाईवे पर झूलेलाल के मकाम पर धरना देकर मरकजी शाहराह को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। अहम कौमी शाहराह की बंदिश के बाद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई, जबकि सड़क के दोनों अतराफ छोटी बड़ी गाड़ियों की मेलों लंबी कतारें लग गयी। धरने के दौरान मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे को गरीब आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगाई की मौजूदा लहर ने पहले ही आवाम की कमर तोड़ दी है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा वापस ले, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। नूर हसन सब्जोई, 5 न्यूज़, कंदकोट। महंगाई के दलदल में फंसी अवाम पर मजीद हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद अशिया खुर्दनोश में बेतहाशा इजाफे से जैकबाबाद के शहरी बिलबिला उठे। मजीद जैकबाबाद से तफसील जानते हैं अब्दुल बाकी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद खाने पीने की अशिया में होश रुपा इजाफे से शहरियों की चीखें निकल गई हैं। खाने पीने की अशिया में दालें, घी, आटा समेत चीनी में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो गया है। अब एक हफ्ते के दौरान घी इतना महंगा, 500 रुपये घी महंगा हो गया। जब सिंध गवर्नमेंट ने 3500 रुपये की रकम मुकर्रर की है, 4200 रुपये का एक तोड़ा आटे का मिल रहा है। चीनी देखें आप, चीनी 10,000 रुपये का तोड़ा चीनी का हो गया। ये क्या है, ये आवाम करे में खुदा रहा कोई नोटिस ले, कोई है नहीं। इस तरह से इतनी महंगाई हर चीज़ क्या भला पेट्रोल से आ रही है कि चीनी, आटा, घी पड़े से पड़ा है। माफिया के खिलाफ कोई एक्शन ले, कोई डीसी साहब है, कोई केसी साहब है, कोई चेकर है, कोई तो आए इनके ऊपर एक्शन ले। इतनी दिन पे तो मन नहीं करते अपने रेट। दालें महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, घी महंगा होगी, हर चीज़ महंगी होगी। का कहना था कि जिलाई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल टीमें भी यहाँ पर गैर फाल बनी हुई हैं, जिसके बाद यहाँ पर मुनाफाखोरों ने खाने पीने की अशिया में पेट्रोल मसनूआत का जवाब बनाकर महंगाई में इजाफा कर दिया गया है। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफे से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी पहले ही इस महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, इस बार अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया गया। मजीद जानते हैं पिंड ददन खान में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी अकरम, बताइएगा। तहसील पिंड ददन खान शहर छुड़े में मौजूद हो। हुकूमत की जानिब से रात की तारीख में जो अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया, जिस अवाम शदीद परेशान दिखाई दे रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। जी, पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो सूरत हाल इस टाइम है कि उसमें महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा हुआ है और करारों में बड़ा इजाफा हुआ है। हम पहले ही इतने जलील ख्वार हो रहे थे कि एक माह में 2 दफ़ा इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आने जाने में आगे पीछे बड़ी परेशानी बनी हुई है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ये फैसला अपना वापस लें, ताकि जो हम शहरी हैं और गरीब लोग हैं वो सोखा सांस ले सकें। शहरी की बात सुनी, जो बहुत परेशान है आवाम, पेट्रोल की जो कीमत है वो वापस ली जाए तो आवाम को सहूलत मिले, और आवाम बहुत परेशान है। जी, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे इकबाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नफीस अंजुम से। जी नफीस, बताइएगा। जी शुक्रिया।
वफाकी हुकूमत की जानब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफा, जिससे शहरी जो है शदीद परेशान हैं, और जो हुकूमत ने दोबारा दूसरी तीसरी बार जो इजाफा किया है पेट्रोल में, अवाम शहरी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। हुकूमत ने जो इजाफा किया है पेट्रोल में, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इससे पहले भी हुकूमत ने 2 दफा इजाफा किया है, अवाम पे बोझ डाला और तीसरी दफा फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 460 रुपए कर दी है और डीजल 520 रुपए। इससे ये होगा कि जो खाने पीने की अशिया वो भी हमें महंगी खरीद करनी पड़ेंगी, और ट्रांसपोर्ट जो कहे वो बहुत ज्यादा इजाफी हो चुके हैं। हम हुकूमत से बजोर मुतालबा करते हैं, वफाकी हुकूमत से, कि जो इन्हें रेट बढ़ाए हैं इनको वापस लिया जाए, हमें दलदल गुर्बत की दलदल चक्की से निकाला जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी, इन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो इजाफा किया है पेट्रोल में इसको कम किया जाए। जी, आरिफ आला के तारीखी कब्रिस्तान अमर शाह में नाजायज़ तजावुज़ात और सफाई की अबतर सूरत हाल पर चैनल 5 न्यूज़ की खबर रंग ले आई। खबर नशर होते ही ज़िला इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से जाग उठी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ आला राय फैसल इमरान की खुसूसी हिदायत पर रेवेन्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर नाजायज़ तजावुज़ात का ऑपरेशन का आगाज़ किया। मज़ीद जानते हैं आरिफ आला से मोहम्मद आसिफ जोया की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला के तरीकी कब्रिस्तान अमर शाह की बेहरमती और कब्जा माफिया के खिलाफ चैनल 5 न्यूज़ ने आवाज़ उठाई तो इंतजामिया भी मैदान में आ गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान की खुसूसी हदियात पर रेवन्यू अफसरान व अमला ने फिल फौर कब्रिस्तान का दौरा किया और इब्तदाई तौर पर गैर कानूनी तजावुज़ात को मस्मार कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक ईद के तातीलात के बहस कार्रवाई में आर्जी वक्फा आया, मगर अब दफ़ा 32-34 के तहत बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की वाज़ेह पॉलिसी के तहत अब न सिर्फ यहाँ से कब्जे का मुकम्मल खात्मा होगा, बल्कि जल्द ही सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात से इस मुकद्दस जगह का तकद्दस भी बहाल किया जाएगा। अमर शाह का जो कब्रिस्तान है उसका इशू आपने भी हाईलाइट किया, दीगर भी एक तो हमारे जो साफ़ी भाई हैं उन्होंने उस इशू को हाईलाइट किया। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कब्रिस्तानों के हवाले से, उनकी सफाई के हवाले से। वहाँ पे जो है वो किसी भी किस्म का कोई कब्ज़ा या कोई भी गैर कानूनी जो सरगर्मी है वो ना होने दी जाए, इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। और जब ये इशू आपने हाईलाइट किया तो मैंने उसी वक्त जो है वो वहाँ पे जो हमारे रेवेन्यू अफसर हैं उनको कहा कि आप इसको विज़िट करें। उन्होंने और गिरदावर जो थे हमारे रमज़ान आबिद साहब, उन्होंने विज़िट भी किया है और उन्होंने जो है वो वहाँ पे जो कब्ज़ा वो ख़त्म करवा सकते थे वो उन्होंने करवाया भी है। लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर जो है वो 32-34 की कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। ज़िला इंतजामिया का मजीद कहना है कि किसी भी बासा शख्स को सरकारी या मजहबी अराजी पर कब्जे की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेवन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक कब्रिस्तान की हदूद का तयन मुकम्मल करके बाउंड्री वाल और मुस्तकिल सफाई को यकीनी बनाया जाएगा, ताकि शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा हो सके और कब्रिस्तान के तकद्दस व हुर्मत को बहाल रखा जा सके, जो कि हमारा दीनी फरीज़ा है। कैमरामैन मुजैब मुगल के साथ मोहम्मद आसिफ जोया, चैनल 5 न्यूज़, आरिफ वाला। दादू में हालिया बारिशों ने गंदम की तैयार फसल को शदीद मुतासर कर दिया। किसानों ने सिंध हुकूमत से ऐलान करदा रिलीफ पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात अला बख्श की इस रिपोर्ट में। दादू ज़िले में इस साल गंदम की काश्त तकरीबन 2,42,000 एकड़ रकबे पर की गई और तैयार फसल की मार्केट तक तरसील का अमल भी जारी है। अचानक होने वाली 2 दिन की बारिशों ने काश्तकारों की मेहनत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने उनके अखराजात बढ़ा दिए हैं, तो दूसरी जानिब गैर मुतवक्किया मौसमी तब्दीलियों ने फसलों को तबाही के ध्यान पर पहुँचा दिया है। बरसात से कम ही लाए छॾिया, कम ॿोड़े छॾी, सॼो फसल तबाह थी वियो, बचो छा आहे। हुकूमत जेका रिलीफ ॾिए पई, छा रिलीफ ॾिए पई? रिलीफ इहो ॾिने जो डीज़ल 520 रुपया करे छॾी, ज़मींदार हारी वञनि काॾे। दूसरी जानिब महकमा एग्रीकल्चर के एडिशनल डायरेक्टर का कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से दादू में 17,000 किसानों को यूरिया और DAP खाद पर फ़ी किसान 22,000 रुपये फ़ी एकड़ की सब्सिडी से करोड़ों रुपए मुहैया किए गए, जिससे गंदम की काश्त टारगेट से भी ज़्यादा हुई है। छोटे छोटे आबादगारों को, गिरवर्स को पैकेट दिया था 2 बोरी यूरिया की और 1 बोरी DAP की, सारे आबादगारों को दी है
तो इससे आबादकारों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। दूसरी जानिब महकमा खुराक के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मंसूर मीरानी का दावा है कि ज़िले में गंदम की खरीदारी के लिए 6 मराकज़ कायम कर दिए गए हैं, जबकि बारदाना रजिस्टर्ड आबादगारों को सिंध बैंक के ज़रिए फराहम किया जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि मौसमी तब्दीलियों और पॉलिसियों के असरात से निपटने के लिए ऐसा मौसर और मुस्तकिल निज़ाम तश्कील दिया जाए जो किसानों को हकीकी तहफ़्फ़ुज़ और सहारा फराहम करे। अलाबश खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़, दादू। कसूर वफाकी मोहतसिब आला पाकिस्तान की हिदायत पर वापडा ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों को फौरी रिलीफ दिया गया। एडवाइज़र वफाकी मोहतसिब गुलजार अहमद बट ने दर्जनों साइलिन के केसेस सुनकर मौके पर फैसले सुना दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। कसूर में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मोहतसिब आला पाकिस्तान नवीद कामरान बलोच की हिदायत पर एडवाइज़र टू मोहतसिब गुलजार अहमद बट ने वापडा दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। यहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और वापडा के खिलाफ बिजली के बिलों और दीगर मामलात में मुबैना ज़्यादतियों की शिकायत पेश की। एडवाइज़र गुलजार अहमद बट ने तमाम केसेस को सुना और मौका पर ही रिलीफ फराहम किया, जबकि बाज़ मुतासरा अफराद के बिजली के बिल भी माफ़ किए गए। लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ और आज मेरे पास 50 के करीब साइलिन थे जिन्होंने मोहतसिब साहब को दरख्वास्त दी हुई थी, जिनके साथ नेस्को अथॉरिटी कसूर ने उनके मुताबिक ज़्यादती की थी। तो उन सब को सुना है, बारी बारी सुना है, सबकी बात सुनी है और उस पर जो कानून के मुताबिक अहकामात थे वो जारी किए हैं। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान इदारे को 10,901 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 9,499 पर फैसले किए जा चुके। वफाकी मोहतसिब का इदारा शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इजला में खुली कचहरियों का इनेकाद करता है, ताकि अवाम को लाहौर जाने की जहमत और इजाफी अखराजात से बचाया जा सके। जिनके साथ ज्यादती हुई थी उनका बिल भी माफ़ किया है और जिन्होंने कोर्ट केसेस थे उनको भी फैसला किया है। हूँ यहाँ पर कुछ लोगों के मामला ऐसे होते हैं कि जो रिलीफ नहीं मिल सकता तो फिर उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, जिन्हें मिल सकता है उन्हें हम रिलीफ दे देते हैं। वफाकी मोहतसिब आला का इदारा अवाम की खिदमत में अपना हर मुमकिन किरदार अदा करते हुए लाखों लोगों को इंसाफ फराहम कर चुका। शहरी अपनी शिकायत के अंदराज के लिए मोहतसिब आला के ऑनलाइन पोर्टल से भी रुजू कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। सूबाई वजीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन ने अपने हल्के में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी और उन्होंने मर्द और ख़वातीन के मसाइल सुने। बिलाल यासीन ने मौके पर मुतलका हुकाम को फौरी हिदायत जारी की और कहा कि रोज़मर्रा अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह है, ताकि अवाम के साथ एतमाद का रिश्ता बरकरार रहे। उन्होंने मौजूदा माशी मुश्किलात को खलीजी जंग का शाखसाना करार दिया और बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रात गए अवामी मुश्किलात में कमी का ऐलान किया है। सूबाई वजीर ने कहा कि वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब काबीना ने भी अपनी तनख्वाहें अवामी रिलीफ के लिए जमा करवा दी हैं और इंशाअल्लाह जल्द तेल मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी से अवाम को आसानियाँ फराहम की जाएंगी। बिलाल यासीन ने वाज़ेह किया कि हुकूमत किसी सूरत अवाम को मुश्किलात में धकेलना नहीं चाहती और अवामी खिदमत और तरक्की का सफ़र आसान नहीं, इसलिए भरपूर मेहनत और कुर्बानी दरकार है। हल्के की लीगी कारकुनान ने सूबाई वजीर बिलाल यासीन का शुक्रिया अदा किया और तरक्याती कामों पर इनकी काविशों को सराहा। बड़े और आपको बताएं, पेशावर में हालिया बारिशों के बाद रेस्क्यू 1112 की डी वाटरिंग टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरिक जमा पानी के निकास और शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। रेस्क्यू पेशावर की टीम सफिया होम, वर्क्स रोड, शाहीन हाउसिंग सोसाइटी, बढ़ानी पुल, सरदार कॉलोनी, बोर्ड बाजार, बाड़ा पुल और उमर गुल रोड में पानी जमा होने की इत्तलात पर फौरी तौर पर रोज़ाना रवाना हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने जदीद मशीनरी की मदद से डी वाटरिंग ऑपरेशन शुरू किया और मुतासरा इलाकों से पानी निकालने का अमल तेज़ किया। तर्जुमान के मुताबिक सरदार घड़ी में बारिश का पानी घरों और मोहल्लों में दाखिल हो गया था, जहां कार्रवाई करते हुए 120 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला दादू की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं ने कायदे अवाम को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मज़ीद तफ़सीलात दादू से अल्लाह बख्श की इस रिपोर्ट में देखिए। तरह ज़िला दादू में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम 4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। ज़िला क़यादत की जानिब से पीर हाउस में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जहाँ पार्टी के मर्द व ख़वातीन रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुक़र्रिर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी सियासी खिदमत, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी गई कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश किया। तारीख़ का वो स्याह दिन है जिस दिन इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे अदालती कत्ल के ज़रिए उनको शहीद किया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना चाहते थे। ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनको जो ज़बानें देने वाले ये शहीद अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जो ड्राइंग रूम से सियासत को निकाल के लोगों में बाहर लेके आए। सो हम इस दिन को हम स्याह दिन की तारीख में लिखते हैं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के बका के लिए, इस मुल्क के वजूद की हिफाजत करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। रहनुमाओं ने तकरीब का इख्तिताम इस अज़म पर किया कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली की जद्दोजहद पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए मुसर राह है और उनके नज़रियात पर अमल पैरा होकर मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाया जा सकता है। अल्लाह बख्श खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद टंडो अलायार में महंगाई में मजीद इजाफा हो गया, जिससे आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। किरायों में इजाफे के साथ साथ रोज़मर्रा अशिया भी महंगी हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कुव्वत खरीद ख़त्म कर दी थी, अब पेट्रोल महंगा होने से 2 वक्त की रोटी का उसूल भी मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किरायों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बराह रास्त महंगाई को बढ़ाता है, जिसका सबसे ज़्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कीमतों में कमी करके रिलीफ दिया जाए। ज़िला खैरपुर में चिकन पॉक्स के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं, जिस पर कमिश्नर सखर ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिखकर सूरत हाल का नोटिस लिया है। अब तक 16 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 7 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। ज़्यादा मुतासरा बच्चे नौमौलूद हैं। ज़िले में सिर्फ एक आइसोलेशन वार्ड कायम है, जो 8 तहसीलों के लिए नाकाफ़ी है। नारा, फैज़गंज, गोड़ धेजी समेत दीगर इलाकों में 70 से ज़ायद बच्चे के मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि बरवक्त इक़दामात ना किए गए तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। सखन में मुल्तान मोटरवे पर सीसीटीवी कैमरे और हिफाजती बाड़ें गायब होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर तेज़ रफ्तार गाड़ियों की निगरानी मुतासिर और हादसात मामूल बन चुके हैं। हर 15 किलोमीटर पर नस्ब कैमरे भी महफूज न रह सके और कई मकामात पर कैमरे नाकारा होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। मोटरवे हुकाम की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जिससे सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालात उठ गए हैं। मुसाफिरों ने हुकूमत से फौरी तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। गुजरांवाला में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने फौरी नोटिस लेते हुए डिवीजनल SP से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम अरसलान उमर थाने से फरार के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। इसके 4 साथी भी फरार हो गए। मुलजिम हराजानी और चोरी के मुतादिद मुक़दमात में मुलव्विस था और इससे 30 बोर पिस्टल बरामद हुई। इसी तरह फैसल और आमिर नामी मुलजिम भी पुलिस नाकों पर फरार होते हुए जख्मी हालत में पकड़े गए। मुल्तान में कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत डिविजनल इजलास में अवामी मसाइल के हल और आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात पर जोर दिया गया। कमिश्नर ने जदीद टेक्नोलॉजी और मुकामी नेटवर्क के ज़रिए डॉग बाइट केसेस का डेटा बेहतर बनाने और निगरानी को मौसर बनाने की हिदायत की।
انہوں نے کھلی نالیوں، اوپن ڈرینز اور غائب مین ہول کورز کی فوری نشاندہی کرنے، ہسپتالوں میں ڈاگ بائٹ ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے سیفٹی اقدامات کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت جاری کی۔ شکرگڑھ فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ناقص اور مضر صحت لال مرچ اور ہلدی فروخت کرنے والی فیکٹری سیل کر دی اور ذمہ دار شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر زاہد مبین کی قیادت میں ٹیم نے چھاپہ مارا، سیمپلز لیبارٹری میں بھیجے گئے جس میں مصالحہ جات میں ملاوٹ اور معیار کی خلاف ورزی ثابت ہوئی۔ فوڈ اتھارٹی نے ضلع بھر میں چیکنگ کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ملاوٹ کرنے والے عناصر کی اطلاع دیں تاکہ سخت کارروائی کی جا سکے۔ پاک پتن کے علاقے عارف والا کے قریب گاؤں 17 ولی پل پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر آگے جانے والی ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور گاڑی کو کاٹ کر لاشوں اور زخمیوں کو باہر نکالا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں محمد احمد اور جاوید شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں زمان اور شفیع اللہ شامل ہیں جنہیں تشویشناک حالت میں ساہیوال منتقل کر دیا گیا۔ تمام افراد کا تعلق پاک پتن شہر سے بتایا جا رہا ہے۔ رحیم یار خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے عوامی صحت کے تحفظ کے لیے کارروائیاں تیز کر دیں۔ تھیلی چوک کے علاقے میں ایک بیوریج یونٹ پر چھاپہ مار کر پروڈکشن بند کر دی گئی۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق کارروائی کے دوران 1130 لیٹر غیر معیاری فلیورڈ ڈرنکس اور مشینری کو ضبط کر لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیمپلز لیبارٹری ٹیسٹ میں فیل ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی، جبکہ قوانین کے خلاف ورزی پر یونٹ مالکان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق جعل سازی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ چنیوڑ میں امتحانی نظام کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے بڑا اقدام اٹھا لیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے نقل کروانے کے الزام میں امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ اور نگران کو معطل کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات کے لیے پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ تعلیمی حکام کا کہنا ہے کہ امتحانات میں بدعنوانی اور قواعد کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے 5 نیوز۔